بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حبیبہ راشد۔ ویور، سال کا آغاز ہمارے لیے جہاں بہت خوش آئند ہوتا ہے، وہاں ہی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کچھ حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں، یا پھر یوں کہا جائے کہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں جن کا تصور انسان کی روح کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کچھ اس طرح کے حالات و واقعات ہمارے ساتھ 2024 میں بھی رونما ہوئے ہیں، جس کا تفصیلی جائزہ آج ہم اس ویڈیو میں لیں گے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں سال نو کے آغاز میں، جہاں ہمیں یہ خبر دیکھنے کو ملتی ہے کہ KPK میں میر علی مقام پر نامعلوم افراد نے 6 حجاموں کو قتل کر دیا اور پھر فرار ہو گئے۔ 10 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق صدر پرویز مشرف کی 2019 کی سزا کو برقرار رکھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ قدرتی موت سے وفات پا گئے۔ 16 جنوری 2024 میں پاکستان میں ایرانی میزائل حملے ہوئے۔ اس حملے کا ذکر کچھ اس طرح کریں کہ ایران نے بلوچستان کے اندر میزائل حملہ کیا، جن کو ایران نے دہشت گردانہ حملہ قرار دے دیا، اور اس حملے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس حملے سے 2 بچے ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے۔ ساتھ ہی 19 جنوری کو ایران کے حملے کی وجہ سے پاکستانی سفیر کو ایران سے واپس بلوا لیا گیا۔ 18 جنوری کو پاکستان ایئر فورس نے ایران سے پاکستان پر حملے کا بدلہ لینے کا سوچا، اور پھر ایران کے اندر موجود بلوچ نے علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر صدقہ سے فضائی حملے شروع کیے، اور یہ مبینہ طور پر بلوچ لبریشن آرمی کی کمپنیوں پر حملہ شروع ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں چند خواتین اور 3 بچے بھی مارے گئے جو کہ غیر ملکی شہری تھے۔ اور یہ ایران اور بلوچستان کا معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ 27 جنوری کو ایران میں 3 بندوق برداروں نے سروان کے مقام پر 9 پاکستانی مزدوروں کو قتل کر دیا۔ اس طرح 29 جنوری کو بلوچستان لیویشن آرمی نے پاکستان سیکیورٹی فورسز پر آپریشن درا بولان کے نام سے ایک مربوط حملہ شروع کیا۔ یہ حملہ مربوط حملہ تھا کہ جس کا نشانہ فوجی چوکیوں اور فوجی اڈے بنے۔ انہوں نے کاکال پور سمیت دیگر علاقوں پر حملہ کیا۔ 30 جنوری کو جب ہم ان تمام مسئلوں سے باہر نکلتے ہیں تو ایک نئی خبر گردش عام ہوتی ہے کہ جس خبر نے پاکستانی نوجوانوں کے اندر ہلچل مچا دی۔ جی ہاں، یہ خبر آتی ہے سابق وزیر اعظم بانی PTI کو ریاستی راز فاش کرنے کے جرم میں 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ فروری کے آغاز میں ہی ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ KPK میں ڈیرہ اسماعیل کے ایک پولیس اسٹیشن پر تحریک جہاد پاکستان کے عسکریت پسندوں نے حملے کے دوران 10 اہلکار کو ہلاک اور 6 کو زخمی کر دیا۔ 7 فروری 2024 میں بلوچستان کے عام انتخابات سے قبل بلوچستان کے انتخابی دفاتر کے باہر دھماکوں سے حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 29 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے جبکہ درجنوں لوگ بھی زخمی ہوئے، اور اس حملے کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ نے قبول کی ہے۔ 8 فروری کو KPK کی ایک پولیس موبائل پر حملہ ہوا جس سے 5 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پاکستان میں عام انتخابات 2024 شروع ہوتے ہیں اور ہر علاقے میں عام انتخابات کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے تہانت کے الزامات کے درمیان جیت کا دعویٰ کر دیا۔ یوں 14 فروری کو پاکستان مسلم لیگ نون PPP اور دیگر جماعتوں کے اتحاد سے PMLN باقاعدہ حکومت بنانے کا اعلان کرتی ہے۔ 10 مارچ 2024 کو آصف علی زرداری دوسری بار پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ 16 مارچ 2024 شمالی وزیرستان پر فوجی چوکی پر خودکش حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں پاکستان نے افغانستان کے اندر TTP کے مبینہ ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سرحد پار سے گولہ باری کے ذریعے حملے شروع ہو گئے۔ تو ناظرین، واقعات کا سلسلہ اسی طرح کے بڑھاتے اور آپ کو اپریل میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں کہ 2 اپریل 2024 کو پاکستان میں سینٹ کے انتخابات شروع ہوئے۔ 6 اپریل کو طالبان کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہو گئے۔ 12 سے 17 اپریل 2024 کے ملک بھر میں مسلسل بارش اور بجلی گرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ کم از کم 63 افراد ہلاک ہو گئے۔ 19 اپریل 2024 میں کراچی میں جاپانی شہریوں کو لے جانے والی بس پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ 20 اپریل کو برف کی بہت زیادہ پگھل جانے کی وجہ سے KPK میں سیلاب الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اسی طرح مئی کا آغاز پاکستانیوں کے لیے خطرناک ثابت ہوا
اور मई के आगाज में ही गिलगित बल्तिस्तान और शारा कराकरम पर बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। बलोचिस्तान में कार बम धमाके के नतीजे में सहाफी समेत 3 अफराद भी हलाक हो गए। यूं पाकिस्तान ने इंतहाई एजाज का काम सर अंजाम देते हुए चांद के कामयाब लॉन्चिंग के साथ अपने पहले कमरी मिशन का आगाज भी किया। 10 से 13 मई के दौरान आजाद कश्मीर में बढ़ती हुई कीमतों के एहतजाज के खिलाफ एक पुलिस अफसर हलाक हुआ, जबकि मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए। 16 मई को एक बम हमले से वजीरिस्तान के स्कूल को तबाह किया गया। 29 मई को तुर्बत से कोयटा जाने वाली बस खाई में जा गिरी। जून के आगाज में होने वाले वाकयात के बारे में आपको आगाह करते हैं कि 3 जून 2024 को केपीके के जिला लकी मरवत में पोलियो की टीम पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार भी हलाक हो गया। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 2024 में रियासती राज फाश के इल्जाम में बानी पीटीआई को कलअदम करार दे दिया। 15 जून को एक जापानी कोहे पेमा पर मुर्दा पाया गया, जबकि दूसरा साथी माउंट स्टॉपिंग इस वाक़े के बाद लापता हो गया। जबकि 27 जून 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नाजायज शादी करने से मुतालिक खबर गर्दिश करने लगी, जिसके बाद बानी पीटीआई की सजा बरकरार रखी गई। यूं जून 2024 में गर्मी की लहर इस कदर तेज हुई और सूरज ने अपनी तपिश बरकरार रखी, और यूं सूरज की तपिश और गर्मी की लहर की वजह से कम अज कम जनूबी पाकिस्तान में 568 अफराद गर्मी से हलाक हो गए। सिर्फ कराची में 427 अमवात हुई। इन्हीं वाकयात के साथ शुरू होता है जुलाई, जहां राफला कोट आजाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर जेल ब्रेक होते हैं, जिसके बायस एक कैदी हलाक होता है और 17 फरार हो गए। यूं 3 जुलाई को केपीके के जिला बाचौर में साबिक दीगर अफराद ने इनकी गाड़ी पर बम हमले किए, जिसकी वजह से वो मारे गए। 8 जुलाई 2024 को एक खबर गर्दिश आयाम में आती है कि 2022 में हुए नैरोबी में पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ का पुलिस के हाथों कत्ल गैर कानूनी था, और फिर कीनिया की हुकूमत को हुक्म दिया गया कि वो उसके खानदान को 10 मिलियन कीनिया शर्लिंग बतौर मुआवजा अदा करे। कुछ दिनों के बाद जुलाई में एक खबर गर्दिश आयाम में आती है कि आजाद कश्मीर में चीप खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 15 मासूम जाँ बहक हो जाते हैं। 12 जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में कम अज कम 20 नशिस्तों से महरूम है। चंद दिनों बाद पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से $7 बिलियन कर्ज हासिल करने का फैसला किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब रहनुमा ज़हीरुल हसन शाह को चीफ जस्टिस गाजी फाइजीसा की मौत पर अहमदिया रुकन की जमानत देने पर 10 मिलियन रुपए इनाम की पेशकश करने के बाद गिरफ्तार किया गया। 30 जुलाई के अफसोसनाक हादसा पेश आता है और यूं होता है कि कोहाट में सैलाब से कम अज कम 14 अफराद हलाक हो जाते हैं, और फिर यकम अगस्त में एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि आसमानी बादल फट जाते हैं और सैलाब के नतीजे में एक अफराद हलाक हो जाता है। 6 अगस्त को अरशद नदीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये बात यूं शुरू होती है कि अरशद नदीम प्रेस में 2024 के समर ओलंपिक में मर्दों के जूलियन थ्रो में तलाई तमगा जीतने के बाद पाकिस्तान का पहला ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड मेडल हासिल किया। 12 अगस्त को बलोचिस्तान के जिला मस्तोंग के डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच अपनी गाड़ी पर मुसल्लह हमले में मारे गए। 13 अगस्त को यूं होता है कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा फैज हमीद को खयारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें वह एक निजी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के कारोबार पर छापे शामिल थे। और यूं कोयटा में यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानी परचम फरोग करने वाले मकान और दुकान पर दस्ती बम हमले होते हैं। दस्ती हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक होते हैं, जबकि 16 जख्मी हुए थे। इसी तरह 15 अगस्त जो एशिया में क्लीट एमपीपेक्स का पहला केस मर्दान जिला केपीके में एक ऐसे मरीज में दरियाफ्त हुआ जो मशरिक वस्ता का सफर कर चुका था। 19 अगस्त को आजाद कश्मीर में एमपीओ केस का लीक केस रिपोर्ट किया गया, जिससे मुल्क में मुकम्मल केसेस की कुल तादाद 4 हो गई। 21 अगस्त को लाहौर में एक फ्री लॉन्च वेब डेवलपर को 2024 के साउथ रिपोर्ट के छुरा मार से मुतालिक ऑनलाइन गलत मालूमात फैलने के शोबे में गिरफ्तार किया गया, जिसने 2024 को बरतानिया के फिसादात में हिस्सा डाला, और भी इन्हें 26 अगस्त को बरी कर दिया गया। 22 अगस्त को डाकुओं के काफिले के हमले के नतीजे में 12 पुलिस एहलकार भी मारे गए। 24 अगस्त को पश्चिम बलोचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन के करीब मोटरसाइकिल बम धमाके के नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद भी मारे गए।
इस तरह 25 अगस्त को बलूचिस्तान के जिला लसपेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर एक बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 12 अफराद जान बहक जबकि 32 अफराद जख्मी हो गए। इसी रोज पंजाब के शहर कहूटा में बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में तमाम सवार जो के तादाद में 24 थे जान बहक हो गए। 26 अगस्त को बलूचिस्तान को जिला मुसाखेल में 23 अफराद को गाड़ियों से निकाल कर मारा जाता है, जिसकी जिम्मेदारी के बाद लिबरेशन आर्मी कबूल करती है। यूं इसी रोज बलूचिस्तान के जिला कलात में मुसल्लह अफराद के हमले से 4 पुलिस अफराद समेत 9 अफराद हलाक हो जाते हैं और 30 अगस्त को अपर तीर KPK में मट्टी के तोड़े गिरने से 12 अफराद हलाक हो जाते हैं। और फिर बिल्कुल इसी तरह का वाकया 2 सितंबर को KPK में जिला कोहिस्तान में, जहां बस मिट्टी के तोड़े में गिरती है, 3 अफराद हलाक हो जाते हैं। 9 सितंबर को जनूबी वजीरिस्तान में पोलियो टीम के ऊपर हमला किया गया। इसी रोज को तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा साद रिजवी समेत 2 पाकिस्तानी शहरी को हाईलैंड की एक अदालत ने इस्लाम मुखालिफ सियासतदान ग्रेट वोल्डर्स को जान से मारने की धमकी देने पर गैर हाजिरी की सूरत में सजा सुनाई। 12 सितंबर को कोयटा में तौहीन मजहब के इल्जाम में पुलिस की हिरासत में एक शख्स को पुलिस अफसर ने गोली मारकर हलाक कर दिया। 22 से 25 सितंबर के दौरान KPK जिला करम में जमीन के तनाज़े की वजह से सुन्नी शिया मुसलमानों के दरमियान झड़पों में कम से कम 25 अफराद हलाक हुए और दर्जनों जख्मी भी हो गए। 23 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को 30 सितंबर से नाफिजुल अमल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का जिक्र डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। 26 सितंबर शुमाली वजीरिस्तान में फौजी छापे के नतीजे में 8 अस्करियत पसंद मारे गए। और सितंबर के इख्तिताम के साथ अक्टूबर के आगाज में आपको एक ऐसे वाकयात से आगाह करते हैं कि बलूचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस के छापे की वजह से बलोच लिबरेशन आर्मी के अस्करियत पसंदों की हलाकत की इतला मिलती और 5 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद में पानी PTI के हामियों के एहतजाज के दौरान एक पुलिस अफसर मारा जाता है, जिसके नतीजे में 8 अक्टूबर 2024 को खान के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया जाता है। 6 अक्टूबर 2024 को कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान पोर्ट कासिम पावर प्रोजेक्ट के चीनी मुलाजमीन को ले जाने वाले काफिले पर कार बम धमाके में 2 चीनी शहरी हलाक हुए जबकि 10 से ज्यादा जख्मी भी हो गए। 11 अक्टूबर को बलूचिस्तान को जिला दुखी में कोयले की कान पर मुसल्लह अफराद के हमले में कम से कम 21 अफराद हलाक हुए। 14 अक्टूबर न्यू कवाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म की योंग की क़यादत में एक तकरीब में किया गया था। 15 अक्टूबर 2024 SCO सरबराही इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ और 17 अक्टूबर 2024 को पंजाब कॉलेज बराए ख़वातीन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहां पंजाब में मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद तुलबा के एहतजाज के बाद कॉलेज स्कूल को बंद कर दिया जाता है। 20 अक्टूबर 2024 को KPK में 2 ख्वाजा सराओं को कत्ल कर दिया जाता है। 21 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर करवाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का इंतखाब पार्लिमानी कमेटी के जरिए किया गया और ओहदेदार की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई। 22 अक्टूबर पर याहिया अफरीदी को एक बार पार्लिमान कमेटी और सदर जरदारी ने पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस के लिए मुंतखब कर दिया। नवंबर के आगाज में बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में एक मोटरसाइकिल बम धमाके में 19 अफराद हलाक हो जाते हैं और 14 नवंबर को कौमी असम्बली ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और इनके सर्विस ब्रांचों के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने के हक में वोट दे दिया। 5 नवंबर 2024 को कराची के टेक्सटाइल फैक्ट्री में सिक्योरिटी फोर्सेस गार्ड्स की फायरिंग से 2 चीनी शहरी हलाक हो जाते हैं। 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 26 अफराद हलाक जबकि 62 जख्मी हो गए। यूं ही 11 नवंबर को एक पुलिस कांस्टेबल को 2023 के पेशावर मस्जिद बम धमाके के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 नवंबर शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले में पाकिस्तानी तालिबान के 8 अरकान मारे गए। 15 नवंबर 2024 में पंजाब में शदीद स्मोक की वजह से हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, जिसकी वजह से लाहौर और मुल्तान में भी लॉकडाउन नाफिज किया गया। 21 नवंबर 2024 कत्लेआम खुर्रम में शियों को ले जाने वाले काफिले पर बंदूक के हमले में कम से कम 42 अफराद हलाक जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए। 21 से 23 नवंबर तक खुर्रम में सुन्नी शिया ग्रुपों के दरमियान झड़पों में कुल 82 अफराद हलाक और 156 जख्मी हो गए।
26 نومبر 2024 اسلام آباد پولیس اور پی ٹی آئی کے ارکان کے درمیان خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے والوں میں جھڑپ ہوئی، جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور یوں سال کے اختتام کے آخری مہینے 9 دسمبر 2024 میں حکومت آزاد کشمیر نے پرامن اسمبلی اور پبلک آرڈر آرڈیننس 2024 منسوخ کر دی، جو نومبر میں متعارف ہوئی تھی۔ 16 دسمبر 2024 کو کراچی کے باغ کے علاقے میں ایک شخص نے غربت کے نام پر اپنی بیوی اور اس کے دوست کو قتل کر دیا۔ 17 دسمبر شانگلہ کے پی کے میں ایک چوکی پر مسلح افراد کے حملے سے 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ 18 دسمبر کو امریکہ نے پاکستانی میزائل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام میں شامل اداروں پر پابندی عائد کر دی۔ 26 دسمبر کو کے پی کے میں سیکیورٹی فورسز کے چھاپوں میں 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ اور 28 دسمبر افغان طالبان کا کہنا تھا کہ ان 24 دسمبر کو افغان کے اندر ہونے والے فضائی حملوں کے جواب میں پاکستان میں متعدد اہداف پر حملے کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی کی جانب سے جانے ایک اسپیشل رپورٹ، جس میں آپ نے جنوری 2024 سے لے کر دسمبر 2024 میں ہونے والے تمام اہم واقعات اور سالے کے بارے میں معلومات لی۔ امید ہے کہ 2025 ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے خیر کا سال ثابت ہو۔ سال نو ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے خوش آئند ثابت ہو۔ خدا کرے کہ یہ نیا سال تیرے دامن میں وہ سارے پھول کھلا دے کہ جن کی خوشبو نے تیرے خیال میں شمع جلائی رکھی تھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ۔